floods. Now, large parts of Gujarat and Maharashtra received heavy rainfall, creating a flood-like situation at several places, causing a flood-like situation in both the states. The Indian Met Department has issued alerts for heavy rainfall in isolated areas in the state. Gujarat witnessed heavy rainfall and flooding in certain areas in Rajkot. Visuals from certain areas in Rajkot showed vehicles inundated and massive flooding in the area and submerging homes. Around 300 mm of rainfall has been recorded in the last few hours, and close to 70 people have already been shifted to safer places. And as far as the advisory of the IMD is concerned, it looks like that there is an alert in place for heavy rainfall in isolated areas in the state. So both, as well as Gujarat and Maharashtra are concerned, both these states have received heavy rainfall, which has created a flood-like situation in several places. Just look at the kind of visuals that we're putting out. Rain wreaking havoc in Maharashtra as well as Gujarat, causing a lot of inconvenience to the common man. Waterlogging being reported from multiple areas, which has resulted in traffic jams and, as I pointed out, delays for the common man. But it looks like there will be no respite in the next few days, because there is already an alert and advisory by the IMD in place, which is predicting that this situation could continue in the next few days as well. As we pointed out earlier, about 300 mm of rainfall has already been recorded in the last few hours. Close to 70 people have been shifted to safer places, and all of this is coming in from Rajkot and other areas in Gujarat. So two sets of visuals that we're putting out. One set of visuals coming in from Gujarat, where you can see how vehicles are completely submerged because of the rainfall that continues. In Maharashtra, also pictures telling a similar story. Waterlogging continues, people finding it extremely difficult to try and get to their workplace and for emergency situations. Let's also now bring in our colleague Divakar Singh, who in fact is joining us from Thane in Mumbai. Divakar, हम इन विजुअल्स और पिक्चर्स को देख रहे हैं. दो चीज़ आपसे समझना चाहूँगी. पहली, अभी थाने में स्थिति कैसी है, और जो मेट डिपार्टमेंट है उनका क्या कहना है कि ऐसी स्थिति आगे वाले दिनों में भी बनी रहेगी? देखिए, पहली चीज, मैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मौजूद हूं और ये घोड़बंदर का इलाका है, फाउंटेन का इलाका है, और यहाँ पर स्थिति बेहद ही खराब है. आप देखिए तस्वीरों में, पूरा हाईवे जो है वो पानी में डूबा हुआ है, और उस पानी में डूबने के चलते जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल थम सी गई हैं. जबरदस्त ट्रैफिक इस वक्त मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर देखने को मिल रहा है. साफ तौर पर ये जो तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं, मुंबई से पालघर जाने वाला रोड है, और यहाँ पर जैसे ही आप घोड़बंदर का ब्रिज उतरेंगे, इसी तरह का ट्रैफिक और जबरदस्त पानी यहाँ पर हाईवे पर देखने को मिलेगा. जबरदस्त वाटर लॉगिंग यहाँ पर हुई है. आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि गाड़ियां किस तरह से पानी के बीच से निकल रही हैं. उसके बीच लगातार तेज बारिश यहाँ पर जारी है. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते ये तस्वीरें और भयावह होती चली जा रही हैं. मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले 24 घंटे पालघर में रेड अलर्ट रहेगा, और साथ ही साथ जो है ऑरेंज अलर्ट थाने के लिए रहेगा. तो ये जो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट का जो इशारा मौसम विभाग ने दिया है, इसका मतलब साफ है कि आने वाले 24 घंटे में इससे भी ज्यादा तेज बारिश होने वाली है. और जो परिस्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो वो बेहद ही और बिगड़ने में उसको वक्त नहीं लगेगा, और यहाँ पर बाकायदा लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. ये पूरा जो हिस्सा है, जबरदस्त वाटर लॉगिंग यहाँ पर हुई है, और लगातार जो पहाड़ों से पानी है वो भी रोड की तरफ आ रहा है, जिसके चलते ये स्थिति को और खराब कर रहा है. जो होटल्स है आसपास के, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो होटल्स में भी पानी जो है वो पहुंच चुका है, पानी भर चुका है, जिसके चलते जो होटल के मालिक हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. तमाम होटल्स यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है. जो नाले हैं वो नाले पूरी तरह से चौकअप हो चुके हैं, वो पानी को खींचने में असफल साबित हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर अब बाकायदा इस तरह की स्थिति है. दोनों तरफ ट्रैफिक, मुंबई से पालघर और पालघर से मुंबई जाने के लिए जो लोग भी निकले हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गाड़ियां इस पानी में बंद पड़ जा रही हैं, और बाद में जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है. तो यहाँ पर जो मुंबई अहमदाबाद घोड़बंदर इलाके की स्थिति आप देख रही हैं, वो बेहद ही खराब होती जा रही है, क्योंकि बारिश लगातार तेज हो रही है. जी दिवाकर, जैसे हम देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, और जैसे आप बता रहे हैं कि आईएमडी का भी कहना है कि ऐसी बारिश आगे वाले दिन में भी होगी. क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है?
देखिए, सबसे ज्यादा जो असर अब तक देखने को मिला है वो है रायगढ़ जिला, पालघर जिला, ठाणे जिला, ये 3 जिले हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो रत्नागिरी का जिला, जो कोकण का क्षेत्र है, खेड़ का इलाका हो गया, या फिर जो है आप कोकण के आगे की तरफ आएंगी तो रत्नागिरी के अलावा जो बाकी के इलाके हैं उसी वहां पर उस तरह की स्थिति इसी तरह से बनी हुई है। क्योंकि जो रायगढ़ का इलाका है, रायगढ़ का जो जिला है, कई गाँवों में पानी भर चुका है, नदियां वहां पर बेहद उफान पर हैं। यही स्थिति रत्नागिरी जिले की भी है, वहां पर भी कई गांवों में पानी जो है वो घुस चुका है, कई गांवों का संपर्क जो है एक दूसरे से टूट गया है। और इस वक्त मैं अगर मुंबई और ठाणे या फिर पालघर की बात करूं तो उसकी स्थिति भी इसी तरह से होती जा रही है। अगर इसी तरह से बारिश लगातार होती रही, क्योंकि बारिश बहुत तेज यहां पर हो रही है और ये होती रही, तो जो एकदम ट्रैफिक थमसा गया, आप देखिए कि एकदम ट्रैफिक जो है पूरी तरह से थमा हुआ है, गाड़ियां बिल्कुल भी यहां पर मूवमेंट नहीं कर रही हैं। और ऐसे में ही स्थिति बनी रही तो फिर जो बारिश का पानी है या फिर जो पहाड़ों से पानी आ रहा है रास्ते की तरफ, वो पानी इसी तरह से सड़कों पर आएगा और वो सड़कें वाटर लॉगिंग होंगी और फिर मुंबई से पालघर थाने का कनेक्शन भी टूट सकता है, जो साफ तौर पर अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी तरह से बारिश, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश इस वक्त यहाँ पर हो रही है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि मुंबई, थाने, नवी मुंबई, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन रेड अलर्ट साफ तौर पर पालघर और रायगढ़ जिले के लिए है, जहाँ पर भारी से भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। जी दिवाकर, जैसे आप बता रहे हैं, पालघर हो गया, थाने हो गया, रायगढ़ हो गया, इन जैसे एरियो के लिए अलर्ट ऑलरेडी है आईएमडी की तरफ से, तो आईएमडी और प्रशासन का क्या कहना है? इन एरियाज में जो लोग हैं, क्या उनको कोई सेफर एरियाज में मूव करा जा रहा है? देखिए, जिन इलाकों में पानी भर गया है, जिन गांवों में पानी घुस गया है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है। पालघर में एक एनडीआरएफ की टीम तैनात है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और जो टीडीआरएफ, जो स्थानीय लेवल पर जो है जो रेस्क्यू एजेंसी होती है, उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा ठाणे में भी एक जो एनडीआरएफ की टीम है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा जो रत्नागिरी का महाड इलाका है, जहां पर हमेशा बड़े हादसे सामने आते रहे हैं, महाड ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछले सालों में देखा गया है कि बारिश के चलते गांव के गांव वहां पर बह गए, लैंडस्लाइड हुआ और उसके चलते कई गांव तबाह भी हो गए। तो उसको देखते हुए, क्योंकि रत्नागिरी के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, तो उसको देखते हुए वहां पर भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। स्थानीय लेवल पर और साथ ही साथ राज्य सरकार लगातार एजेंसियों को अलर्ट पर रखे हुए है कि अगर कोई भी आपात स्थिति पैदा होती है, लोग पानी के बीच अटकते हैं या फिर गांव में पानी भरता है, तो लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की पूरी व्यवस्था कल ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है कि सभी तैयारियां पूरी हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने कल ही ये साफ कर दिया था कि आज के दिन कई जिलों में जबरदस्त बारिश होगी और उसका नजारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे मुंबई हो, चाहे थाने हो, पालघर हो, रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, नवी मुंबई हो, इन तमाम जिलों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश देखने को इस वक्त मिल रही है। दिवाकर, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रशासन का अभी ये प्रिडिक्शन है कि ऐसी मूसलाधार बारिश आगे वाले दिन में भी दिखाई देगी। जो आम आदमी है, आपने काफी लोगों से बातचीत करी होगी, किस तरह की सबसे ज्यादा दिक्कत उनको सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि मैं जहां मौजूद हूं, यहां पर एक होटल है। होटल में आमतौर पर आप देखती है सामान्य दिनों में कि यहां पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, लोग अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पानी भरा हुआ है, जो होटल का स्टाफ है वो पूरी तरह से बैठा हुआ है और पूरा जो काम है उनका पूरी तरह से बंद है। क्योंकि जब तक ये पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 फीट तक इस होटल में पानी घुस गया था, जिसको धीरे धीरे अब कर्मचारी निकालने में लगे हुए, लेकिन बारिश फिर से तेज शुरू हुई है, जिसके चलते तमाम जो स्टाफ आप देखिए इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि ये कब बारिश बंद हो, कब ये पानी यहाँ से निकले और फिर वो अपना जो कारोबार है वो शुरू कर पाए। लेकिन इस वक्त वो होता नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो ये घरों से अपने लोग निकले हैं, उनको अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से उन्हें ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। तमाम जो गाड़ियां हैं, आप देखिए कि सैकड़ों हजारों गाड़ियां यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक में अटकी हुई हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। यहाँ पर स्थिति यही है क्योंकि वो अब घर कब पहुंचेंगे या फिर जिस मंजिल के लिए जाने के लिए निकले हैं वहां पर कब पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल गाड़ियों का मूवमेंट जरा भी होता नजर नहीं आ रहा है। और ये मुंबई से बगल में जो भाईंदर का इलाका है, घोड़बंदर का इलाका है, वहां की स्थिति है। तो यहाँ से आगे आप पालघर की तरफ जाएंगी तो इसी तरह की स्थिति आपको मिलेगी, क्योंकि पूरा रास्ता ये जाम है और कम से कम 5 से 7 किलोमीटर तक की स्थिति जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई की तरफ जाम है और दूसरी तरफ पालघर की तरफ जाम है।